Sir, as it has been already pointed out that the remarks on Dr. Ambedkar are of critical importance to the Congress right now. It's taking up the issue strongly. So in this session also, the CWC session and at the rally, will this issue figure prominently? Could there be a resolution on it? How would you take this up at both the events? Certainly, the issue which already Jairamji mentioned, that last 1 week, all over India, our Congress party workers are in the field on agitation on this issue. Every district committee, I think there is agitation that was happened. Today, all district committee is doing demonstration to the district magistrate office, and they are going to hand over a memorandum to the President of India on the demand of Amit Shah's resignations. We actually, the view know how the parliament session ends. BJP and this government, Modi government, not only insulted Ambedkar ji, basically they have completely rejected the values of the constitution. Without calling an agitation, there is a natural response from the ground level which we are witnessing on this issue. Of course, we can understand sometimes he may told it mistakenly. Everybody pointed out. The country expects that Home Minister is going to tender an apology on this issue. This was the country's expectation. But what happened? Again, they are, day by day, they are trying to humiliate the legacy of Ambedkar ji. Day by day, they are trying to destroy the value of the constitution. They are undermining the electoral process completely. They are curtailing the democratic principles. That's why we will have a detailed discussion on Belgavi, and certainly there will be a strong follow-up on this issue. मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि बेलगावी का क्या ऐतिहासिक महत्व है। जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा है, 100 साल पहले यही महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। साथ ही साथ 26 दिसंबर 1924 को, ठीक 100 साल पहले, सेवादल की शुरुआत बेलगावी से ही हुआ था। सेवादल के गठन में डॉक्टर NS हार्डिकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। हम डॉक्टर हार्डिकर को भी याद करेंगे। और सेवा दल के पहले अध्यक्ष, पहले चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी थे। और ये सेवा दल का काम ठीक 100 साल पहले बेलगावी से ही शुरू हुआ था। दूसरा जो ऐतिहासिक महत्व रखता है हमारे लिए बेलगावी, कि जब महात्मा गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष बने, अपने अंतिम भाषण में अंत में उन्होंने कहा कि मेरे AICC के पदाधिकारी होंगे, और उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी AICC जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। हालांकि जवाहरलाल नेहरू पहले बार 1923 के सेशन, काकीनाडा सेशन में वो जनरल सेक्रेटरी बने थे, पर उनकी लंबी इनिंग्स जो है हमारे कांग्रेस के इतिहास में, भारत के इतिहास में, खुद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मेरी लंबी शुरुआत बेलगावी से ही हुआ था। उन्होंने लिखा है अपने किताब में, सेमी परमानेंट जनरल सेक्रेटरी में बन गया। तो उसकी शुरुआत बेलगावी से ही शुरुआत। तो
ये बेलगावी हमारे लिए कई कारणों से महत्व रखता है। जी सर, हिंदी में चाहिए तो आप अगर एड्रेस कर दें। अंग्रेजी में पूछो ना यार। हिंदी में मुझे नहीं आती अंग्रेजी। पूछो पूछो। तो सर 2 सवाल हैं। पहला तो यह है कि एक तरफ आप लोग गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं और आक्रामक हैं आप लोग, दूसरी तरफ बीजेपी भी अब अंबेडकर के मुद्दे पर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को उतारने जा रही है। तो बीजेपी की जो ये स्ट्रेटजी है, इस पर आपको क्या कहना है? और दूसरा ये कि जैसा बीजेपी का सवाल है, ये आपका सवाल है। ये सवाल है जिसको आपको जवाब देना चाहिए। और दूसरा सर ये कि जैसा हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले थे, तो क्या इस बेलगावी CWC के बाद कोई नव सत्याग्रह यात्रा पर राहुल गांधी निकल सकते हैं? Belgavi CWC will discuss, I told you, the program of the next 1 year. We are not formalized anything concretely so far. The CWC will deliberate and discuss and decide. BJP strategy, they are totally in defensive. What strategy they have? They should seek the resignation from the Amit Shah, Home Minister. This is what our strategy, very clear. This is what we need. This is what the country needs. BJP is every day they are trying to divert the issues. Wherever the genuine issue we are raising, they are only one point agenda to divert the issue with the communal things and everything. This type of things they will continue. Here also they will continue with press conference on this basis. They took a case, police case against Rahul Gandhi. The day one onwards we are asking, show the CCTV cameras footage. Nothing come out. These are the tactics which we can understand. But our campaign is going to be pinpoint on this issue. They should answer these questions raised by the country, not only by the Congress, not only by the India Alliance, raised by the country. Whether Amit Shah is going to resign or whether he is going to tender an apology to the country, this is what our question. Let them do whatever they want. जो कहना है वेणुगोपाल जी ने कह दिया है, पर मैं यही जोड़ूंगा कि 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने और हमारे संसद में प्रवेश हुए, वो सीढ़ियों पर अपना सिर झुकाया और जो सीढ़ी है अपना माथा वहीं ठेका। उसका नतीजा क्या है? पुराना पार्लियामेंट खत्म हुआ और नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना। 26 नवंबर को, इस साल 26 नवंबर को प्रधानमंत्री ने संविधान का ओरिजिनल कॉपी को माथा टेका। उसका नतीजा क्या होगा? नया संविधान बनेगा। उनका मकसद ही यही है। इस संविधान नहीं चाहते हैं। 26 नवंबर 1949 से आरएसएस इस संविधान का विरोध कर रही है। सभी नेता, गोलवालकर, दीनदयाल उपाध्याय, सभी नेता उनके इनका विरोध किया है। सुदर्शन, नाम लीजिएगा, मैं आपको सबूत दे सकता हूं कि क्या क्या इन्होंने नहीं कहा इस संविधान के बारे में। तो इनका एक ही मकसद है, संविधान के प्रस्तावना से छुटकारा पाना चाहते हैं। संविधान का जो अनेक प्रावधान हैं उनका रोज नजरअंदाज होता है। संवैधानिक संस्थाओं पर, मिसाल के तौर से इलेक्शन कमीशन, उस पर हमला किया जा रहा है। गृह मंत्री का अटैच्ड ऑफिस बनाया जा रहा है। संवैधानिक मूल्यों को भूल गए हैं। हाँ, राजनीतिक मजबूरी के कारण आज वो संविधान का नाम लेते हैं, संविधान को जपते हैं, पर इनकी मंशा साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है। बोली में संविधान है, पर करनी में सब संविधान के खिलाफ है। संविधान पर आक्रमण है
और नरेंद्र मोदी जी का एक ही मकसद है, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग, नया संविधान। हम इसको होने नहीं देंगे। जयराम जी ने 2 उदाहरण दिए जहां मोदी जी ने सर झुकाया और उसके बाद क्या किया। एक और उदाहरण है जयराम जी, लाल कृष्ण आडवाणी, जिनके आगे वो सर झुकाते थे। आज आडवाणी जी आईसीयू में हैं, लेकिन सारे नेता जा रहे हैं सारंगी जी को देखने। ये इनकी असलियत है। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.